Deepak Israni, the purchase manager at Blue Cross Laboratories, and I have just attended the conclave, and it has been a super experience. The time has been spent very productively, and just now we attended a session by Mr. Pradyuman on IT, Chat GPT, and all how we can leverage our businesses with all these models. Also, we had a great time with with the chairman and MD of Motilal Oswal, who gave us a very enlightening experience on the wealth that can be accumulated in India over the next 25 years. And of course, towards the end, we had the buyers and sellers meet, and it was a privilege to meet so many manufacturers and suppliers. And I'm very sure and very confident that we'll be using this data to effectively do buying for a company and get the best deals for ourselves and as well as for this. Thank you. I'm Ashish, MD and CEO at Motilal Oswal Private Wealth. It was a real pleasure speaking at the RMB Numero Uno India SME Conclave. Got to meet a lot of interesting entrepreneurs. I spoke about the future of the Indian economy and how to invest over the next 5, 10, 15 years. And after being at this conference, I'm really excited and optimistic that Indian entrepreneurship has a lot of ambition, drive, and now I feel really even more confident about India's future. So this is a great event that RMB Numero Uno does, and I look forward to many future events such as these. Thank you. Hello, myself is Rotarian Naresh Garg. I'm part of RMB from several years. Today my experience was one of the best experience I had since morning. I have come and I have seen people coming in. It was a houseful attendance over here. The speakers were great. Takeaway is like a lot of government changes are happening in MSME. So whatever the government is trying to promote MSME industry, so we get to learn about it and बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. यहाँ पे राहुल तिमाड़िया जी आए थे, उन्होंने अब लैंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया. इट वाज अमेजिंग. इनफैक्ट यहाँ पे आके जो नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों को मिलते हो. टुडे आई लर्नड new segments about AI. AI is also developing. So a lot of things what was last year is something new to learn about it. So Mera experience takeaway was very good, and I will suggest people to come for these kind of seminars, and these seminars really help you to learn lot of new technology and government initiatives. Thank you. Yeah, hi, I am Major Priyanka Gupta from Jivanta Renewables Private Limited, and we are into solar power solutions. So, well, I am attending the SME Bharat Conclave for the third consecutive year, and let me tell you, it was quite an eye opener. The third edition was an improved version, much larger version of the first two editions. The speaker lineup, the panel discussions, everything, the speaker lineup, the panel discussions, the programs, the networking, and the whole event was very well organized. A lot of takeaways. I think as a country, when we are heading and looking forward to be a 5 trillion economy, SMEs are the backbone of India, and this platform, the SME Bharat Conclave, provides a roadmap, a guidance, a support system. So how SMEs can scale up and go to probably the listing and being on the main board. So I thank everyone, including the president and the team, Rotarian Arun Vadhva and his team, for conducting and organizing such a wonderful event. Congratulations, RMB Numero Uno. नूमरो उनो का तीसरा साल का कॉन्क्लेव है और इस साल से हम इस कॉन्क्लेव का नाम भी एसएमई भारत कॉन्क्लेव रख रहे हैं. अब सब छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स एसएमई और एमएसएमई से है. हमें ऐसे लगने लगा है कि नेटवर्किंग से खाली हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. नेटवर्किंग के साथ स्किल अपडेशन, लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट मैनेजमेंट थॉट्स, और हमको वो भी सीखना है कि बड़ी कंपनी कैसे बड़ी बनी और उनके प्रोसेसेस क्या है. ये सिखाने के लिए हमने ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया. इस कॉन्क्लेव में हमने सारे बड़े कंपनियों के बेस्ट एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ को बुलाए. आर गोपाल कृष्णन सबको जानते हैं, जो टाटा सन्स के एक्स डायरेक्टर है, जो यूनिलीवर के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं.
उनसे हमने सीखा कि लंबी प्लानिंग कैसे करने की है। हम प्लानिंग करते हैं क्वार्टर की, उन्होंने सिखाया कैसे प्लानिंग करनी है 5 साल की, 10 साल की। जो एक माइंडसेट चाहिए ग्रोथ के लिए और सक्सेसफुल बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, वो हमको बाकी स्पीकर्स ने बताया। मनीष पंचाल ने बताया कि कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ करने हैं। किशोर मसूरकर ने दिखाया कि R&D और इनोवेशन का क्या रोल है। सागर गोसालिया ने हमें सिखाया कि मेंटल हेल्थ और फोकस कितना इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम पीपल लाइक संजय अरोरा, जो सबअर्बन डायग्नोस्टिक्स के फाउंडर है, उन्हें सिखाया कि मिशन विजन कितना इम्पोर्टेंट है, वैल्यू सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है और खुद को डे टू डे रनिंग से निकालना कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें लोगों को पता है, बट जब हम सुनते हैं ओनर्स से, जब हम सुनते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन से कि ये करने से क्या फ़ायदा होता है, उनकी कंपनी कैसे ग्रो करती है, तब हमें इन पे विश्वास होता है। और ये स्ट्रैटेजीज फिर सब बिजनेस ओनर्स अपने कंपनीज में जाके लगाएंगे। सो ये जो पैनल था, जैसे मोतीलाल ओसवाल के मोतीलाल ओसवाल के आशीष शंकर आए थे, उन्होंने बताया कि 25 साल में इंडिया का GDP 25 टाइम ग्रो हुआ है, वेल्थ ग्रो हुई है। अब ये चीज़ें जब हम एक हफ्ते का देखते हैं और 20% मार्केट नीचे देखते हैं, हम डर जाते हैं, बट हम वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। तो ऐसे काफ़ी सारे स्पीकर, सोनाली देवरे जो इंडस्ट्रीज ऑफिसर थी, इन्होंने सिखाया कि गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीम्स है जो हमें पता ही नहीं है। वो स्कीम्स SME सेक्टर और MSME सेक्टर के लिए बनाई गई है, बट काफ़ी लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर गोपाल अग्रवाल जी ने एक अलग तरीके का इकोनॉमी दिखाया जो स्पिरिचुअल इकोनॉमी है, जो वाराणसी में, अयोध्या में कल्चरल और स्पिरिचुअल रेनेसांस की इकोनॉमी है। काफ़ी लोगों को उसका बेनिफिट होगा। सो ओवरऑल हमने ये कोशिश की है कि ये सारे प्रोग्राम में ऐसे लोगों को बुलाए जिनसे हर एक बिजनेस ओनर, हर एक एंटरप्रेन्योर उनसे सीखे और खुद की बिजनेस बेटर बनाए और खुद की बिजनेस का ग्रोथ पाथ क्रिएट करे। एंड में हमने एक बायर सेलर मीट भी रखा, जहाँ पे बड़े कंपनीज के बायर्स आए थे और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किए जब सेलर्स उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ऐसे एक होलसम प्रोग्राम था सारे दिन का, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर की। एंड में प्रद्युमन शर्मा जी का AI मास्टर क्लास था, जहाँ पे सिर्फ AI का ग्लैमर नहीं दिखाया गया, AI को रोज़मर्रा की चीज़ों में कैसे ले आ सकते हो, कैसे अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस प्रोसेसेस को मोर एफिशिएंट बना सकते हो, वो सारा डिस्कशन। सो ओवरऑल वी हैड अ ग्रेट सेशन with something for everybody, and I hope if everyone just gets one idea, one thought, one innovation that they can implement in their own businesses, then we would have had a successful conclave. Before ending, I want to thank each and every person associated with the organizing team, every member of RMB Numero Uno, staffs of Priyaj Enterprises, Envisage, who actually spent days together doing this event perfectly. अमेजिंग प्रिंटर का स्टाफ जिन्होंने काफ़ी सारा प्रिंटिंग में हमको सपोर्ट किया, गिफ्टिंग पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वाज एसेंशियल। उनके बिना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। सो तहे दिल से थैंक यू टू एवरीवन फॉर मेकिंग दिस अ ग्रेट सक्सेस। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। देखिए, हम लोग जो है रोटरी मीन्स बिजनेस RMB मुंबई नुमेरो उनो ने ये जो SME भारत कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज किया था आज, तो ये पर्टिकुलरली फोकस था SMEs के ऊपर। बहुत सारे SMEs के जो लीडर्स हैं, SMEs के ओनर्स हैं, वो यहाँ पर आए और अच्छी अच्छी फैकल्टीज से उन्होंने अपनी SME की लाइफ में, SME बिजनेस की लाइफ में जो जो चैलेंजेस आते हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, तो वो सब देखा। और अच्छे लीडर्स थे, अच्छा लोकेशन था, अच्छा एवेन्यू था, और मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त भी मिले जो मेरे साथ बिजनेस में भी हैं, जिनसे हम बिजनेस भी करते हैं। और रोटरी आपको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिजनेस नेटवर्किंग के लिए देता है जहां पर आप यू कैन डू बिजनेस विद एथिक्स ऑफ रोटरी। थैंक यू रोटरी, एंड थैंक यू रोटरी मीन्स बिजनेस मुंबई नुमेरो उनो फॉर SME भारत कॉन्क्लेव। थैंक यू। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज सोम सैनी। मैं रोटेरियन हूँ, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे कांदिवली का मेंबर हूँ, और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर है रोटरी मीन्स बिजनेस मुंबई नुमेरो उनो, ये जो चैप्टर है, मैं इसका पास्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो मेरा नाम है सोम सैनी, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू।
पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारा आज ये तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर है और मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरे साल भी कन्वीनर हूँ ये कॉन्क्लेव का। नंबरो उनो जो मैंने को फाउंड किया था 2018 में, ये चैप्टर जो आरएमबी नंबरो उनो रोटरी मीन्स बिजनेस, जो जहाँ पे रोटेरियन बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये, तो उसमें हमने 3 साल पहले ऐसा सोचा था कि हम क्यों ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे एसएमई और एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, लोग क्या बोल, एकेडमिक्स क्या कहना है, आईटी का क्या कहना है, एआई का क्या कहना है, वहाँ एक जगह मिले और नॉलेज शेयर करें तो बहुत लोग को इसमें लाभ मिले। तो पहला साल में 150-200 लोग थे, इस साल में 250 थे। ये साल मुझे खुशी है कम से कम 300-350 लोगों ने सुबह से इसमें पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग मुझे लगता है कि विषय जो सुबह से लेके गोपाल कृष्ण थे, गोपाल कृष्ण जी ने मतलब ही इज लाइक डॉयन वर्क इन टाटा सन्स एंड हिंदुस्तान लीवर, बहुत ही प्रेसियस, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज आए हैं बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे बड़े लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत विस्डम के पल्स हमको दिए हैं। उसके बाद भी गोपाल अग्रवाल जी थे, मिनिस्ट्री से आए थे, सोनाली देवरे, उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की क्या स्कीम है जो हमको भी नहीं मालूम है, जो बिजनेस करते हैं उसको भी नहीं मालूम है, तो खास उसने समझा है कि अभी पहले एक डिवीजन 4 ग्रेड हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जहाँ पे काम करते हैं तो ए में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आज 40% सब्सिडी मिलती है। ये तो एक बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट हमको पता है। गोपाल जी ने अग्रवाल जो दिल्ली से आए थे वो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है बीजेपी के और खास इकोनॉमिक अफेयर्स देखते हैं, खास पूरी पार्टी के थिंक टैंक है वो, तो कहाँ जा रही है गवर्नमेंट वो भी हम दिखाए क्योंकि बहुत जरूरी है आज के समय में कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनाएगी और क्या आगे क्या सोच रही है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो वो कल्चर इकोनॉमी के बारे में आजकल जो चल रहा है, आई थिंक कल्चर इकोनॉमी इज बेस्ट, नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये बहुत बूम होने वाली है, तो उसमें भी एसएमई और एसएमएसएमई को फोकस करना चाहिए, सिर्फ वो ट्रेडिशनल नहीं, क्योंकि वो कल्चरल में इकोनॉमी में वो कैमरा भी आ सकता है, टूरिज्म भी आ सकता है, गाड़ी भी, होटल भी आ सकती है। तो कल्चर इकोनॉमी भारत का बहुत बड़ा बूस्टिंग पावर बनने वाला है और कहीं ना कहीं जीडीपी का 10 से 15% नेक्स्ट 5 साल में बनने वाला है। उसके बाद लंच के बाद भी हमने देखा बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन हुआ, वहाँ भी हमारे किशोर मसरूकर R&D से बात किया, संजय अरोरा जो बहुत बड़े डॉक्टर सबरमन के ओनर है उसने भी काफी ब्रांड के बारे में समझाया, फिर गोसालिया जी थे, दूसरे भी थे, उसने पैनल डिस्कशन किया और उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल से एमडी और सीईओ वेल्थ के आशीष शंकर भी आए थे, उसने भी बहुत अच्छा समझा है कि भाई हाउ यू ग्रो योर इक्विटी, हाउ यू इंक्रीज योर वेल्थ। और उसके बाद में आपने देखा कि एआई जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है और आपको सबको मालूम है कि 10 दिन पहले ही दिल्ली में एआई सुमिट हुई, इंटरनेशनल एआई सुमिट हुई और सबको क्यूरियोसिटी है अपने एसएमई में कि इसको यूज कैसे करें। तो उसका प्रद्युमन जोशी जो हमारे मेंटर भी है आईएम अहमदाबाद में, मेरे कलीग भी है आईएम अहमदाबाद हमारी कमिटी में, तो ही इज अथॉरिटी टुडे इन मुंबई, काफी ट्रेनिंग देते हैं। उसने ये समझाया कि एआई एसएमई में कैसे यूज करें, हम नॉर्मल एआई नहीं, एसएमई में कैसे यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तो लोग कहेंगे कैसा सक्सेस हुआ, लेकिन 6:30 बजे भी लोग है, ये खास मैं कहना चाहूंगा क्योंकि 4 बजे के बाद सेमिनार में लोग होते नहीं है, 6:30 के बाद भी आज 150 लोग यहाँ खड़े, तो मुझे ऐसा लगता है, संतोष है कि जो हमने मेहनत की, मुझे लगता है एसएमई नंबरो उनो भारत में कॉन्क्लेव में आज वो कहीं ना कहीं कुछ सक्सेस मिली है, लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके गए सुबह से लेके शाम तक। तो मुझे आशा है सब लोग को कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे और अपने अपने बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसमें ऐसा है कि आरएमबी नंबरो उनो जैसे मैंने पहले बताया कि रोटेरियन का प्लेटफॉर्म है, तो पहले तो रोटेरियन आप होगे तो ये ज्वाइन कर सकते हो ये, लेकिन हमने फ्लेक्सिबल भी किया है कि आर्मी में आप जुड़ते हो तो कोई बात नहीं, आप 3 महीने में रोटेरियन बन सकते हो। तो वहां पे और सबसे बड़ा फायदा आरएमबी का ये है कि ट्रस्ट फैक्टर है ही। तो आरएमबी नंबरो उनो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक दूसरे को जानने के लिए सालों नहीं निकालने पड़ते। आप आरएमबी नंबरो उनो में मेंबर बने दूसरे दिन से बिजनेस कोई भी देगा आपको, क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी है, क्योंकि रोटरी मीन्स ट्रस्ट, तो इसलिए रोटेरियन जुड़ेंगे आरएमबी में तो ट्रस्ट दूसरे दिन से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। जैसे हमारे चैप्टर में हम 50 लोग हैं,
हम कभी भी बिजनेस के बारे में सोचते नहीं, हाउ वी कैन शेयर द नॉलेज, फिर भी पुश जरा भी नहीं करते कि वे तूने दिया नहीं, पैसा कभी नहीं बात होती, फिर भी 35-40 करोड़ का सालाना बिजनेस होता है, तो बिना पुश किए तो हम एक दूसरे को बोलते भी नहीं कि बिजनेस दिया नहीं तूने या किसने नहीं दिया। तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अ बिजनेस, क्योंकि मोस्टली रोटेरियंस आर बिजनेस पीपल, या तो कोई बड़े लेवल पे वो सीईओ सीएक्सओ है। तो मुझे लगता है कि आरएमबी प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रस्ट वर्दी है और अल्टीमेटली हम रोटरी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज आरएमबी। और अभी तो रोटरी वेरीफाइड बिजनेस भी हम लोग सबको सर्टिफिकेट दिए हैं डिस्ट्रिक्ट ने कि रोटरी वेरीफाइड बिजनेस है, तो बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया है। तो ये पूरे 2 महीने से जो मेहनत चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं फलश्रुति आज हमको मिली है। बस वही है, पहली बात तो आप कोई भी गोल को, मुझे ऐसा पूरा मानना है कि जब आप कोई भी संस्था में संस्था को आगे रख के जब काम करते हैं, गोल आपका होना चाहिए कि आपकी संस्था कैसे आगे बढ़े, हिमांग जांगला आगे नहीं बढ़े, संस्था आगे बढ़े। एग्जाम्पल में और भी मैं कहीं हूं तो वो सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, पीपल उसको देखते हैं कि जो उसके चलाने वाले हैं, जो या जो प्रेसिडेंट है या कन्वीनर है, वो अपने आप को आगे नहीं कर रहे हैं, संस्था को आगे करते हैं कि भाई आरएमबी नंबर 1 का नाम कैसे हो, और भविष्य में नंबर 1 एक पर्यायवाची हो कि भाई एसएमई एमएसएमई में कोई कनेक्टर है तो भाई नंबर 1 से बात करो, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई सेमिनार करके देगा, या सेमिनार में अच्छे लोग आएंगे। प्लस 2 साल हुआ और हमारी भी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई है, इसलिए जो आज बहुत लोगों ने मुझे बताया कि ये स्पीकर आप हाँ कैसे बोले ऐसा स्पीकर, क्योंकि आज जो गोपाल कृष्ण ने मतलब उसको चलने के लिए लोग मरते हैं, मतलब टाटा सन्स में आप सोचो डायरेक्टर, मतलब टाटा सन्स तो इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है, उसके डायरेक्टर यहाँ आए हैं, और वो भी आज आपने देखा होगा हिंदी में बात की है, आपने देखा होगा कितना डाउन टू अर्थ है, और साउथ इंडियन होते हुए आई थिंक ये मैसेज है, किसने शायद मार्क नहीं किया, तमिलनाडु के, फिर भी वो बताया उसने कि मैं हिंदी में बात करता हूँ। तो ऐसे लोग जो भारत में है, जो हीरा हेरा है, उसको हमने आज इकट्ठा किया, और हम खुशनसीब है कि ऐसे लोग हाँ बताए और हाँ बोले और सब लोग आए, और तो बहुत बहुत उसमें हमको खुशी है। एक हमारे मिनिस्टर साहब नहीं आ सके, एपोलॉजी भेजा, हाउस चालू रखा है आज, और मिनिस्टर साहब को कुछ क्वेश्चन विरोध पक्षों ने पूछ लिया है, तो फोन आया मुझे कि भाई आ नहीं सकूंगा, आई हैव टू गिव द रिप्लाई। तो वो आए, तो नहीं तो वो भी एक महाराष्ट्र से आईटी पॉलिसी क्या है जानने को मिलता है, बट और कहीं उसका मैसेज कुछ कर देंगे हम लोग। तो आज बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग साथ हैं, और आपका भी कुछ धन्यवाद।